In last lecture, we have discussed about the Kapadosha along with their qualities already we have seen. In this lecture, we are going to discussing regarding the its sthana and karma. Actually, when Kapadosha it is there, Snigdha, Shita, Guru, Manda, Slakshna, Mrusna, these are the qualities of our Kapadosh. And how that are working in our body already we have seen. Also along that, whatever the main functions of the Kapadosh already the Ropan or Purana, that type of main functions are there. Also along that, we should know the Samanya Sthana or that's its Sthan at our body. For that purpose, Acharya Vagbhat as well as Acharya Charak explain their own opinions. Among that, Acharya Vagbhat says that Ura Kaddha क्षीरक्लोम पर्वण्य आमाशय रसः मेदो घ्राणमच जीवाश्च कपस्य सूत्रामुरः. As per Ashtanga Hridaya Sutra Sthan, 12 chapter 3rd number shloka, they are explained that Ura Pradesh means chest region. Kanta means throat region. Shira head region. Klom एक्चुअली क्लोम जो वर्ड यूटिलाइज किया जाता है उसके बारे में डिफरेंशियल कंट्रोवर्सीज है. बोले तो एक ही वर्ड बहुत सारे इसमें यूटिलाइज किया जाता है. एक को क्लोम फेरिंग्स करके यूटिलाइज किया जाता है क्लोम वर्ड, एक लंग्स करके यूटिलाइज किया जाता है, और एक उसका ओपिनियन क्लोम को रिलेट किया जाता है पैनक्रियास के साथ. इसके लिए क्लोम वर्ड कॉमनली इधर कंसिडर किया तो आप उसको लंग एंड फेरिंग्स कंसिडर कर सकते हैं. उसके बाद परवरी बोले तो स्मॉल जॉइंट्स. वेटिंग मध्ये स्टुडंट्स आहेत, जॉइन करून घ्यायला सांगतात. Yeah, okay. Parvani means small joints. In that places also it is present. Amashaya means we should consider it is the stomach region. Rasa means plasma it is there, or that lymphatic system it is there. At that region also our Kapadosha is present. Also along that, Meda means whatever the fatty substances are present in our body, at that places also Kapadosha is present. Grana means nose. Jiva, Tongue. And these are the main sites of the Kapadosha, and that's why they are considering that Medom cha Granam cha Jiva se Kapas se Sutra Muraha. These are the main sites of the Kapadosha. That's why Ura Pradesh, Kanta Pradesh, Shira Pradesh, Klom Pradesh, Parvani, Amashay, Rasadatu, Medadatu, Gran, Jiva, and Kaf. These are the main sites of the Kapadosha. And as per Charak's Sanhita also, they mention Ura Pradesh, Shira Pradesh, Griva, Parvani, and Amashaya. Among that, Ura Pradesh is the main site of the Kapadosha. As already we compared, Pakvasha is the main site for the Vata dosh. Nabhi Pradesh is the main site of the Pitta dosh. In that way, here Ura Pradesh is the main site of the Kapadosha. In that way, it is considered. Actually, one by one, we are going to discussing the these locations. First of all, उसमें locations of the kapha is nothing but Ura Pradesh. Ura Pradesh means we should consider chest. क्या क्या है chest में? lungs. हाँ, chest में सबसे important है lungs. उसके साथ साथ heart. बोले तो हार्ट एंड लंग जो प्रेजेंट है उसको हम ट्रायड मानते हैं. 2 लंग और 1 हार्ट प्रेजेंट है. एक्चुअली वो ट्रायड को सपोर्ट देने का काम कौन करता है? कपदोष करता है. उसके आप कंसिडर किए तो लंग के ऊपर एक कवरिंग है और हार्ट के ऊपर एक कवरिंग है. वो कवरिंग का नाम क्या है? पेरिकार्डियम, which covers to the heart, and pleura, which covers to the lungs. And that pleura or pericardium consists of the fluid, that is pleural fluid and pericardial fluid, and that is the example of the kapha dosha, that which acts as a shock absorbing, as well as it will works for the proper functioning of the organs. And that's why actually this kapha dosha, it is that kapha dosha is mainly responsible for maintenance of the functions of that heart and lung, right? That chest.
In chest region, important organs like lung and heart is present. Kappadosh is responsible for to give protection and nutrition to these organs, by which proper functioning of organs takes place. Next, Kanta. Kanta means throat region. Kapha present at this area helps in trapping of foreign bodies as well as humidification of air. उधर जो कंटा रीजन में है एयर जब उधर से अंदर जाते हैं उसका ह्यूमिडिफिकेशन करने के लिए वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या करता है वर्क करता है. सर एकदा रिपीट कर. कंठ प्रदेश which is responsible for humidification and filtering of air as well as trapping of larger foreign particles or trapping of foreign particles. Next, Shira Pradesh. Kappadosh present at this area is may be considered as meningeal fluid. May be considered meningeal fluid means CSF, cerebrospinal fluid. Which is responsible for protection of brain structures. Which is responsible for protection of brain structures. नेक्स्ट मतलब शीर प्रदेश जो है शीर प्रदेश को हम कंसीडर कर सकते हैं वो क्या है उधर सीएसएफ जो प्रेजेंट है सीएसएफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड वो एक शॉक एब्सॉर्बेंट का काम करता है ब्रेन को डायरेक्ट इंजरी नहीं होने देता और कप का काम नहीं प्रोटेक्शन करना यही है लुब्रिकेशन करना यही है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना यही है और वही फंक्शन उधर हमारा मिनिंजियल एरिया बोले तो उधर जो सब एरेक्नोइड स्पेस है जिसमें सीएसएफ प्रेजेंट है वो कर रहा है उसके लिए उसको हम कंसीडर किए. नेक्स्ट कॉम controversial opinions are there
with this word. It may be correlated with palate or lung. Palate or lung. ईशान प्रदेश ब्रेन के रीजन में और उसके साथ मेद धातु बोले तो फैट जो प्रेजेंट है उधर वो प्रेजेंट है. नेक्स्ट पर्वनी जो साइट हम कंसीडर करते हैं बोले तो उरा कंठ शिरा क्लोम पर्वनी. पर्वनी बोले तो इसको हम कंसीडर करते हैं कि अस्थि संधि. बोले तो दो जॉइंट्स जिधर फॉर्म होते हैं वैसे बोले तो स्कल का स्पेस हम कंसीडर किए तो वो स्पेस है. उसके साथ स्मॉल जॉइंट जो है वो सब स्पेस है. और जिधर जिधर जॉइंट फॉर्म होते हैं बोले तो दो से ज्यादा नहीं तो दो एक से ज्यादा जो दो हम कंसीडर करेंगे कि दो बोन्स जिधर एक दूसरे के साथ यूनाइट होते उसको हम कंसीडर करते हैं संधि. और उसको स्मॉल जॉइंट्स है इसके लिए उसको हम बोलते हैं पर्वनी. बोले को joint of two asti. Paravani means small joints. And Kapodos present here causes easy unrestricted movement of joint. Easy and unrestricted movement of joints. Amashaya means stomach. Kledak kappa present as this area. Responsible for dividation of food particles. डिवाइडेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स. दोनों जो फूड पार्टिकल्स है एक दूसरे से डिवाइड करने का काम कौन करता है? आमाशय में क्लेदक कप करता है. यस तो आमाशय संस्थिता सुवर्ण संघात क्लेदनाथ क्लेदका. And at Amasya Pradesh, lubrication and softening of food particles are carried out. देखो कपदोष के साइट हम क्लोम कंसीडर करते हैं उसको पैनक्रियाक कंसीडर कर सकते हैं आप. थ्रोट रीजन भी कंसीडर कर सकते हैं. उसके साथ पूरा प्रदेश में जो लंग प्रेजेंट है वो पर्वनी बोले तो स्मॉल जॉइंट जो प्रेजेंट है वो एरिया. नेक्स्ट है रस. रस बोले तो रस धातु. कपदोष इज ऑल्सो प्रेजेंट एट रस धातु.
and Medadatu. And Medadatu, by which it provide strength and stability. It provides strength and stability नेक्स्ट है घ्राण. घ्राण बोले तो हम कंसिडर करते हैं कि नोज का पार्ट का आपको कफ प्रेजेंट रहता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता है. एक्चुअली आप कंसिडर किए तो आपके नोज के पार्टिकल्स, मतलब नोज के जो हेयर्स है वो क्या करते हैं, लार्जर माइक्रोब्स जो है उसको ट्रैप करते हैं. लेकिन स्मॉलर कुछ डस्ट पार्टिकल्स, माइक्रोब्स, फॉरेन बॉडीज कुछ अंदर जाने लगे तो उधर जो म्यूकस सिक्रीशंस प्रेजेंट रहते हैं, वो म्यूकस सिक्रीशन क्या करते हैं, वो डस्ट को क्या कर देते हैं, ट्रैप कर देते हैं. इसके लिए इंटीरियर रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो है उसमें है, इसको मतलब जो कुछ डस्ट पार्टिकल्स है उसको एंट्री नहीं होने देता. इसके लिए आप कंसिडर किए तो कप के मतलब स्थान कंसिडर किए तो उसमें घ्राण कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. घ्राण बोले तो नोज पार्ट, उसमें लिखो smaller microbes get trapped by mucus present at nose. म्यूकस प्रेजेंट एट नोज. एक्चुअली क्या रहता है, जो नाजल हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं वो क्या करते हैं, लार्जर पार्टिकल्स को एंट्री नहीं होने देते रेस्पिरेटरी सिस्टम में. लेकिन जो स्मॉलर पार्टिकल्स है वो एंट्री हो सकते हैं, वो क्रॉस कर सकते हैं. मेम्ब्रेन क्रॉस किए तो भी म्यूकस मेम्ब्रेन जो उधर प्रेजेंट है वो क्या करता है, म्यूकस सिक्रीशन से उसको क्या करता है, स्टैग्नेट करके उधर ही ऑब्स्ट्रक्ट करके रखता है. वो उसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है. नेक्स्ट है जिह्वा. जिह्वा बोले तो क्या है, टंग. और टंग आपको पता है, आपको टंग पे टेस्ट के लिए बहुत, परसेप्शन के लिए बहुत हेल्पफुल है. इसमें से कफ का एक टाइप बोधक जो है, जो क्या करता है, बोधन का, रस बोधन का काम करता है. एक्चुअली वो जिह्वा के ऊपर प्रेजेंट है. वो लिखो salivary secretions and perception of taste are maintained by bodhaka kapha, which is present at tongue. Which is present at tongue. अभी ये सभी साइड जो हमने कंसिडर किए है वो सब किधर प्रेजेंट है, ऊर्ध्व पार्ट में. बोले तो कफदोष कॉमनली प्रेजेंट किधर है, ऑल ओवर बॉडी. उसमें से कंसिडर किए तो किधर प्रेजेंट है, ऊर्ध्व में. और ऊर्ध्व में कंसिडर करने के बाद प्रिडोमिनेंटली किधर प्रेजेंट है, ऊर्ध्व प्रदेश में प्रेजेंट है. और 3 पॉइंट लिख के रखो. कफदोष प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी, सर्व शरीरगत है. सेकंड पॉइंट है, उसमें सर्व शरीर में रहने के बाद भी किधर प्रेजेंट है, ऊर्ध्व पार्ट, अपर पार्ट ऑफ बॉडी. उसमें भी अगर कंसिडर किए तो प्रिडोमिनेंटली किधर प्रेजेंट है, ऊर्ध्व प्रदेश में प्रेजेंट है, चेस्ट रीजन में कॉमनली प्रेजेंट है. वो लिखो ये जो कुछ उसके फंक्शंस देखने के बाद हमें मोस्टली इसका स्थान देखने के बाद पता चलता है कि इसके कॉमन क्वालिटीज और कॉमन फंक्शंस क्या होंगे. तो उसके लिए भी सुश्रुत का और अष्टांग हृदय का श्लोका बहुत अच्छी तरह से हमें इंफॉर्मेशन देता है. उसमें एक सुश्रुत के श्लोका के अनुसार संधि संश्लेषण है. संधि संश्लेषण बोले तो आपको पता है, नी जॉइंट में एक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, उसको हम बोलते हैं साइनोइल फ्लूइड. वो साइनोइल फ्लूइड क्या करता है, जो उधर जॉइंट्स है, जॉइंट प्लेसेस है, उसको एक दूसरे के फ्रिक्शन नहीं होने देता संधि संश्लेषण से. और वो फ्रिक्शन नहीं हुए तो हमें जॉइंट पेन और ये नहीं फील होता.
वो टाइप का मेन प्रेजेंटेशन हमारे कप के सामान्य कार्य में इंक्लूडेड है। उसके साथ स्नेहन, रोपण, पूरण। स्नेहन बोले तो हम स्निग्ध द्रव्य जो है, स्निग्ध द्रव्य उसका स्नेहन कर देते हैं। रोपण जो है, रोपण बोले तो हीलिंग प्रॉपर्टी, बोले तो किधर भी हमारे बॉडी में वुंड फॉर्मेशन हो गया तो वुंड क्या होता है, स्लोली हील होने लगता है। बोले तो न्यूली फॉर्म्ड टिश्यू फॉर्म होता है, वियर एंड टीयर टेंडेंसी मेंटेन किया जाता है। उसके लिए रोपण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्क अगर किसका रहे तो वो किसका रहता है, कपदोष का रहता है। उसके साथ साथ पूरण है, पूरण बोले तो फिलिंग ऑफ कैविटीज। बोले तो अगर बॉडी में हमारे किधर भी कैविटी फॉर्म गई तो कैविटी हील होने के लिए कौन हेल्प करता है, हमारा पूरण प्रॉपर्टी जो है, बोले तो जो फील करना, हीलिंग करना, उसके लिए एक्चुअली हमारा जो कपदोष है वो मेनली क्या करता है, काम करता है। उसके साथ साथ बल देता है, बल देता है बोले तो पावर एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। स्थैर्यकृत, स्थैर्यकृत बोले तो स्थिरता देता है, स्थिरता बोले तो आपको पता है स्टाउटनेस एंड बॉडी की जो स्टेबिलिटी है बहुत अच्छी तरह से कप मेंटेन रखता है। और आपको पता है श्लेष्मा पंचदा प्रविभक्ता उदक कर्म नाम अनुग्रहम करोति, बोले तो जो कुछ है, जो उदक बोले तो जल के फंक्शंस है, वो जल के फंक्शन को सपोर्ट करने वाला अगर कोई रहे तो क्या रहता है, कपदोष रहता है। उसके लिए हम कंसिडर करते हैं कि उदक कर्म नाम अनुग्रहम करोति। और उसको अगर कंसिडर किए तो मतलब अष्टांग हृदय के अनुसार वो बोलते हैं कि श्लेष्मा स्थिरत्वम संधित्वम। ये जो कप का टाइप है वो क्या करता है, मतलब एक इंपॉर्टेंट स्थिरत्व देता है। स्थिरत्व बोले तो स्टेबिलिटी देता है। स्निग्धत्व, स्निग्धत्व बोले तो ऑयलीनेस क्रिएट करता है। और संधि बंधक क्षमादि भी बोले तो उसके मेंटल कैरेक्टर देखे तो कफदोष के जो पर्सन रहते हैं वो क्या रहते हैं, क्षमाशील रहते हैं। क्षमाशील बोले तो फॉरगिवनेस जो क्वालिटी है उनके अच्छे रहते हैं। बोले तो कुछ टॉर्चर किया तो वो ज्यादा मतलब हेजिटेट नहीं होते, आपके ऊपर उसका कुछ एक्शन लेना नहीं चाहते। वो मोस्टली क्या करते हैं, उसको टर्न कर देते, नहीं तो क्या करते हैं, पोस्टपोन कर देते जो कुछ उसके ऊपर एक्शन लेना है। वो कफ की मेन क्वालिटीज है। और उदक का कर्म नाम अनुग्रहम करोति। और ये जो कुछ गौरवता और ये सब कंसिडर किया तो वो सब क्या है, उसके मेन क्वालिटीज है। एक एक क्वालिटी हम देखते जाएंगे। उसमें सबसे पहली क्वालिटी है संधि संश्लेषण। बोले तो कपदोष का काम क्या है, जो दो जॉइंट एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे, जो दो जॉइंट एक दूसरे को ज्वाइन हो रहे, उसमें क्या करना, फ्रिक्शन नहीं हो दो बोनी प्लेसेस में, उसके लिए क्या करना, मेंटेन रखना, उधर एक फ्लूइड मेंटेन रखना। एक एग्जांपल है साइनोवियल फ्लूइड, वो लिखो पहले, संधि संश्लेषण। कपदोष regularize the movement of joint. संधि संश्लेषण संधि प्रदेश में प्रेजेंट रहता है। It provides the lubrication by which unpainful movement of joints takes place. Unpainful movement of joints takes place. एक्चुअली संधि बोले तो सिर्फ संधि नहीं, जॉइंट्स नहीं, तो उधर रहने वाले जो बोन्स है, उसके साथ साथ मसल जो है, उधर रहने वाले वेसल्स है, उधर रहने वाले लिगामेंट है, टेंडन है, सभी को क्या करता है, कप सपोर्ट देता है। और उसके साथ साथ उसका एक एग्जांपल ये तो आप ले सकते हैं साइनोवियल जॉइंट करके। साइनोवियल जॉइंट बोले तो नी जॉइंट, वो उसका एक बेस्ट एग्जांपल है। उधर चाहे तो लिख के रखो, फॉर एग्जांपल साइनोवियल नी जॉइंट, साइनोवियल टाइप ऑफ जॉइंट। नेक्स्ट स्नेहन।
आपको स्नेहन पता है, आपको स्नेहन बोले तो अभ्यंग का एक एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं। कफ के क्वालिटीज है, स्निग्ध क्वालिटी है, और स्निग्ध क्वालिटी क्या करता है, स्नेहन करता है। स्नेहन बोले तो ये एक लुब्रिकेशन जैसा है, बोले तो क्या करता है वो एक्चुअली वात की जो मूवमेंट है इजी कर देता है। वात की क्रिया जो है उसको मतलब क्या नहीं करता, वात को पता है आपको, कफ पित्त जो बाकी है मल मूत्र वो सभी को कैरी कर सकता है। अगर कफ समझो कौन से भी नॉर्मल एंटिटी में वात एंट्री हो गया तो उधर से वो क्या भी कैरी करके लेके जा सकता है, लेकिन वो क्योंकि नहीं लेके जा सकता है, उधर क्या मिलता है उसको, मृदुता मिलती है, सॉफ्टनेस मिलता है। और सॉफ्टनेस कौन देता है, स्नेहन जो फंक्शन है कफ का, वो सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है, वो लिखो स्नेहन। समझ में आ रहा है सभी को? Yes, sir. स्नेहन बोले तो इट प्रोवाइड्स द लुब्रिकेशन by which it helps in the easy movement of vata dosh, by which it helps in the easy movement of vata dosh, नेक्स्ट है रोपन। रोपन बोले तो बॉडी में वियर एंड टीयर का हमेशा शुरू रहता है। तो उसके लिए क्या हुआ, अगर एक टिश्यू डेड हुआ, डिकम्पोज हुआ, तो उसके रिलेटेड नया टिश्यू फॉर्म हो जाता है। अगर समझो किधर भी वुंड फॉर्म हो गया तो वुंड हुआ तो वुंड हीलिंग होने लगता है। और रोपन बोले तो हीलिंग मैकेनिज्म, हीलिंग मैकेनिज्म। Replacement of decomposed and dead tissue by newly formed tissue due to which regeneration of tissues and cells, regeneration of tissue and cells are easily carried out, are easily carried out. This property helps in wound healing mechanism, wound healing mechanism। इधर मैकेनिज्म भी दिया है, देखो पहले हीमोस्टैसिस हो जाता है, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाता है, बाद में वो एरिया इन्फ्लेम हो जाता है, उधर स्वेलिंग आता है, बाद में ग्रैनुलेशन टिश्यू फॉर्म हो जाता है। वो ग्रैनुलेशन टिश्यू फॉर्म होना बोले तो ये रोपन है। और उसके बाद क्या होता है, रीमॉडलिंग और मैच्योरेशन बोले तो जो ओल्ड टिश्यू डिकम्पोज टिश्यू है उसको रिप्लेस करके ग्रैनुलेशन टिश्यू उधर क्या लेते हैं, उनका उनका जगह ले लेते हैं। इसको हम बोलते हैं रोपन। नेक्स्ट है पूरन। पूरन बोले तो कैविटी फिल करना। आपको पता है किधर भी कैविटी ऐसी ही एम्प्टी रहेगी तो उधर वात एंट्री हो जाएगा, वात एंट्री हो गया तो उधर क्या हो जाएगा, मतलब वो जो कुछ फीलिंग है, वो जो रीजन जिधर एम्प्टी रीजन है वो क्या हमेशा रहना चाहिए, फीलिंग रहना चाहिए। वैसा के एग्जांपल ले सकते हैं आप। पूरन बोले तो जो हमारा मज्जा है, मज्जा धातु क्या रहता है, इसके अंदर अस्थि धातु के अंदर प्रेजेंट रहता है, वो फील रहता है, उसको हम कंसिडर कर सकते हैं पूरन। पूरन बोले तो फीलिंग ऑफ कैविटीज, बोले को पूरन, फीलिंग ऑफ कैविटीज। So Kapadosh helps in repair and maintenance. नेक्स्ट है बलकृत। बलकृत बोले तो पावर एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कफदोष का कि हमारे बॉडी को क्या चाहिए, कौन सी भी एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी हमारा पित्त प्रोवाइड करता है। लेकिन वो एनर्जी मेंटेन रखने का काम, वो एनर्जी हमारे बॉडी में रखने का काम, पावर वो जो कुछ हमारे बॉडी का प्रॉपर रखने का काम कौन करता है, कफदोष करता है। इसके लिए उसको हम बल बोलते हैं। बल बोले तो पावर एंड स्ट्रेंथ। कफदोष मेंटेन्स पावर एंड स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी, power and strength of the body.
By this function, Kapadosh provides stability to organs, body functions, and mind. Organs, body functions, and mind. स्थैर्य, स्थैर्य बोले तो स्थिर, स्थिर बोले तो स्टेबिलिटी. हमारा माइंड भी स्टेबल रहता है कप से, ऑर्गन स्टेबल रहते हैं कप से, और जो बॉडी के फंक्शंस है, नॉर्मल फंक्शन एक्टिविटीज, वो भी क्या होता है, मोस्टली कप से ही हमें कंट्रोल किया जाता है. नेक्स्ट, क्षमावान, क्षमा. Kapadosh maintains the stability of मन and बुद्धि. उसमें क्या नहीं होने देता, एक्सेसिव स्टिमुलेशन नहीं होने देता. एंगर एक एक्सेसिव स्टिमुलेशन का लक्षण है. आपको मतलब कुछ चीज है उसके बारे में आप थिंकिंग करके करते. एंगर कैसा है, शॉर्ट टेम्पर. बोलो तो अभी आप डिसीजन लेके क्या तो उसको बोल देते, लेकिन वो बोलने के पहले आप बहुत थिंक करने लगे, तो वो थिंकिंग का बेस्ट एग्जांपल होता है आप कफ का एक्टिविटी. उसमें आप सत्व गुण का जो प्रधान व्यक्ति होते हैं उनमें, और जो बलवान व्यक्ति होते हैं, बोले तो कफ में जो कुछ कफ जिनमें अच्छा है, वो लोग क्षमावान रहते हैं. बोले तो क्या नहीं करते, शॉर्ट टेम्पर लेके किसी को भी मतलब रिलेशन ब्रेक नहीं करने देते. बहुत अच्छी तरह से रिलेशन मेंटेन रखने वाले, लॉन्ग टर्म रिलेशन मेंटेन रखने वाले कप होते हैं. वात वाले रिलेशन जल्दी बनाते हैं, ब्रेक जल्दी कर देते हैं. और पित्त वाले रिलेशन अच्छे लोगों के साथ ही बनाते हैं, अगर उनको अच्छा लगा तो कंटिन्यू करते हैं, नहीं लगा तो बंद कर देते हैं. लेकिन कप का वैसा नहीं, कप सभी लोगों के साथ रिलेशन अच्छा रहता है. इसके लिए कफ के जो लोग रहते हैं उनको फ्रेंड्स सर्कल बहुत अच्छा रहता है. पित्त वालों का मीडियम रहता है, वात वालों का कभी ज्यादा रहेगा कभी कम रहेगा, डिपेंड्स, उनका नेचर ही वैसा रहता है. कभी वो फ्रेंड्स के साथ मिक्स हो गए, कभी उनको क्या बोलेंगे पता नहीं रहता. लेकिन कप का वैसा नहीं, कफ का जो कुछ हर एक वर्ड रहेगा वो स्लो रहेगा, लेकिन उसको क्या तो वेटेज रहेगा. ये टाइप का एक्टिविटी रहता है कफ का. इसके लिए कंट्रोल ऑन बॉडी एंड माइंड और मन एंड बुद्धि. ड्यू टू दैट property of forgiveness is mainly present in these peoples. नेक्स्ट है उदक कर्म नाम. आपने सुना था उधर पाकादि कर्म नाम अनल शब्दितम, वैसे इधर उदक कर्म है. उदक कर्म बोले तो वाटर की टेंडेंसी जैसा कफ का टेंडेंसी है. इसके लिए जो जल अंश के जो कुछ एक्टिविटीज है हमारे बॉडी में, वो सब हमारा कपदोष क्या करता है, इजीली कैरी करता है. और जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए लिक्विडिटी मेंटेन रखना, ह्यूमिडिटी मेंटेन रखना, सॉफ्टनेस मेंटेन रखना, ये सब उदक कर्म के एक्टिविटीज है. आपके लैंग्वेज में लिख कर रखो, उदक कर्म इज नथिंग बट इट कंप्लीट्स द फंक्शंस ऑफ जल महाभूत. नेक्स्ट, उर्षता. उर्षता बोले तो पोटेंसी, आपकी सेक्सुअल पोटेंसी, सेक्सुअल टेंडेंसी अच्छी रहने का काम